मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत थी। तो इनकी शख्सियत का मुझ पर ذاتی طور پر یہ اثر ہوا. فخر والی تو کوئی بات نہیں، جب تک یہ نہیں ملے میں مسجد میں بہت کم جاتا تھا. انہوں نے مجھے مسجد میں جانا سکھایا. اس کی زمین بچھن گئی، مکان بچھن گیا ان کا. جو اسلام قبول کرتا ہے اس کی ہر مدد کرتے ہیں. اس کی اپنی ذاتی چیز بھی اس کو نہیں ملی، لیکن ہم تو بہت شرمندہ ہیں. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والد کی وجہ سے ہیں. میرا نام پھر عبدالعزیز رکھ دیا، پیارے سنگھ سے یعنی عبدالعزیز رکھ دیا. اندھیرے سے روشنی کی جانب سفر کی داستان ضلع سیالکوٹ کے گاؤں جوڑیاں کلاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں پیارا سنگھ اس گھر میں 1932 میں پیدا ہوا. اس کے والد چودھری دیوان چند گاؤں کے بڑے زمیندار تھے، جو زمین خود بھی کاشت کرتے تھے اور مزاروں کو بھی زمین دے رکھی تھی. پیارا سنگھ نے اس گاؤں کے اسکول سے 5 جماعت پاس کی اور اسکالرشپ حاصل کیا. پھر اگو کی ضلع سیالکوٹ کے ایک اسکول سے مڈل پاس کیا اور میٹرک کرنے کے لیے بھوپال والا اسکول میں داخل ہو گئے. یہی وہ اسکول ہے جہاں ان کی زندگی نے اہم موڑ لیا اور وہ پیارا سنگھ سے عبدالعزیز بن گئے. آئیے ہم بھی ان کے ساتھ شریک سفر ہوتے ہیں. جب میں آریہ ہائی اسکول بھوپال والے میں پڑھتا تھا تو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے. ایک لڑکا جو ہوتی ہیں سردیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ہمیں ٹیچر جو تھے وہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک لڑکا مسلمان تھا، وہ بھی وہاں جوائن کیا، اس میں بھی اسے بھی پڑھنا پڑتا تھا. تو شام کے ٹائم پہ وہ پھر اس کا گھر بڑی دور تھا، زمیندار لڑکا تھا وہ چودھریوں کا، تو نہیں جا سکتا. اس نے کہا میں بھی ہاسٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہوں. اس نے جا کر سپرڈنٹ سے کہا، سپرڈنٹ نے کہا بھائی کسی لڑکے سے مل لو تو پھر مجھے اگر بتا دو فلاں جگہ پہ جگہ ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایڈمیشن دے دیتا ہوں. تو وہ آیا، ہم بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تھے، سارے لڑکے ہنس کھیل رہے تھے، سکھ بھی اور ہندو بھی. تو اس نے اگر کہا یار میں بھی داخلہ یہاں لینا چاہتا ہوں، کہ اگر کوئی ایسی چارپائی ہو، روم ہو، پلیس ہو، مجھے آپ بتائیں تاکہ میں ان کو بتاؤں سپرڈنٹ صاحب کو. تو ہم نے آئی گئی کر دی، کسی نے کوئی اتنی پرواہ نہیں کی. اور آریہ چونکہ آریہ سماجیوں کا اسکول تھا، مسلمان کم تعداد میں تھے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ لڑکے جو ہے نا وہ اس کو تعصب کی وجہ سے آریہ سماجیوں کا تھوڑا سا تعصب تھا، یا لوگ ہیسیٹیٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ برتن کا رہیں گے تو کھانا پینا ادھر ہمارے برتن خراب ہو جائیں گے، جیسے کہتے تھے کہ یہ برتن برشت ہو جاتے ہیں. جب وہ چلا گیا تو میرے دل میں خیال آیا یار یہ بڑی بری بات ہے، کہنا چاہیے اسٹوڈنٹ ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے کمرے میں آ جائیے، میں سنگل رہتا ہوں، تو ایک بیڈ اور وہاں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں آ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، اس نے جا کر سپرڈنٹ صاحب سے کہا اور سپرڈنٹ نے اس کو داخل کر دیا کہ ٹھیک ہے. وہاں اس نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی کچن والوں نے، سپرڈنٹ نے، بھائی تم وہاں سے کھانا لے آیا کرو، یہاں کھا لیا کرو اپنے کمرے میں. وہ جاتا تھا لے آتا تھا، ہم ادھر ہی کھا لیتے تھے. لہٰذا وہ میرے کمرے میں آ گیا. چلتا رہا کام. صبح پرارتھنا کرتے تھے، ساتھ ہی ایک ورشپ کرنے کے لیے نا کہ چھوٹا سا وہ بنا ہوا باغیچہ لگا ہوا ہے،
एक वहाँ थोड़ा सा बनाव था काफ़ी ऊंचा, उसके ऊपर शेर था, बड़ा अच्छा किस्म का माहौल था वहाँ। तो वहाँ उन्होंने ना प्रार्थना भी, हम सुबह सारे, वो सुपरडेंट हिंदू था ना, वो हमें ओम शांति वगैरह जैसे भजन होते हैं वो कराया करता था। तो वो सारे लड़के जितने भी होते थे पर्टिकुलरली हॉस्टल के वही होते थे मौजूद, वो नहा धोकर आते थे, सबको वहाँ जाना पड़ता। उसमें वो भी जाता था, वो 2-4-5 मिनट करके आ जाता। तो एक दिन वो आया तो उसने फिर आकर ना अपना कुरान शरीफ खोला। तो वो कुरान शरीफ का उसका जो तरीका कार था ना, अंदाज जो था वो बड़ा अच्छा था कि उसने सर पे रुमाल रखा हुआ था, बड़े तरीके से अदब से बैठा चारपाई पर, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार ये कौन सी किताब पढ़ रहा है, ये ऊपर रुमाल क्यों रखा हुआ है इसने सिर पे, ये कोई बड़ी कोई ख़ास चीज़ है, ये क्या बात है। मैं उठा तो मैं उसके जाकर दूर से ही थोड़ा सा दूर हट के देखा गौर से, तो वो बड़ी खूबसूरत किताब थी। तो ऐसा वो दिलकश मंजर था कि मैं उसे देखता ही रह गया ना। तो मैं, उसने मुझे ये समझे कि फैसिनेट कर लिया। वो इतना, वो इसलिए कि वो किताब मैंने पहली दफ़ा इतनी हसीन देखी कि उसकी लाइनें, जो हाशिया था उसमें और लकीरें रंग थे, लाइनों में और कलर थे। तो मैंने कहा यार ये कहाँ से इतनी खूबसूरत किताब लाया, ये तो बड़ी मज़ेदार किताब है, दूर से देखने में ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। मैं फिर ऐसे पहले तो गुम रहा, फिर मैं आकर अपनी चरपाई पे आराम से खामोशी से बैठ गया कि वो बड़ा बादब होकर उसको पढ़ रहा था। जब वो पढ़ चुका तो मैंने फिर उसे बुलाया, मैंने कहा यार ये कौन सी किताब है, ज़रा मुझे भी दो कि मैं इसको पढूं। तो उसने फिर उस वक्त कहा कि नहीं यार ये नहीं, ये आप नहीं पढ़ते, ये हमारी किताब है मुसलमानों की, तो ये अल्लाह का कलाम है, तो इसको हम बड़े पाक तरीके से पढ़ते हैं, और पहले वुदू करते हैं, फिर औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो वो देखो ना, इसकी बेअदबी से भी हम डरते हैं, पता नहीं होता, अल्लाह का खौफ, डर लगता है कि अगर ज़रा सी हो जाए तो फिर आदमी को मुसीबत में, किसी मुसीबत में ना गिर जाए। तो वो ये सारी बातें मैं सुनता रहा। अब मेरे दिल में तो वो बड़ी उसकी ख्वाहिश एक जन्म ले चुकी थी कि ये किताब बहुत खूबसूरत है, मुझे पढ़नी चाहिए। अब जब उसने इतनी सारी बातें कर दी तो मैं बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे मेरे जज्बात बुझ गए और मैं मायूस सा हो गया। मैंने कहा ये कैसे मैं हासिल करूँ, ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। बस इसको लेकर मैं खामोश हो गया कि मैं नहीं पढ़ सकता। फिर मैंने कई गौर व फिक्र करता रहा बड़े दिन कि जब ये गांव जाएगा तो पढ़ लूँगा। फिर मेरा उसी वक्त वो रिपीट कर देता वर्डन के, जब वो कहता है कि हम वुज़ू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये सारी की फॉर्मेलिटीज़ मैं कैसे अदा करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर ये भी कहा कि खुदा का डर लगता है, ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत मुझे घेर ले। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं कोई ऐसी हरकत कर दूँ, तो फिर मैं खामोश हो जाता। मगर वो जो चीज़ मेरे दिल में जन्म ले चुकी थी, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इसको कैसे हासिल करूं। तो मैंने क्या किया, वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, उनके वहाँ बागात वगैरह थे, ज़मीनें थी, तो मैं उसके दोस्ती भी ज़रा आगे कर ली, ज़्यादा हो गया उसके करीब। तो मैंने कहा यार शाम के टाइम पर मैं उसे ले जाता था, वहाँ बागात वगैरह थे, वहाँ से कुछ हम संतरे उन दिनों चला करते थे, तो संतरे वगैरह ले आते, कोई मूलियाँ ले आते, कोई गाजरें गन्ने छन्ने ले आते। तो मेरा मकसद ये था कि ये ज़रा मेरे से खुले तो मैं, ये मेरा दोस्त बन जाए, तो मेरी बात मान दे, मुझे कुरान का पढ़ने के लिए दे। तो मगर वो बोला बाला सा था, इनोसेंट सा, वो इतना मतलब है होने के बावजूद मुझे कोई पराग रस नहीं हुई, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मैं उसका वो जो मंजर देख चुका था मेरे अंदर से निकलता नहीं था। फिर वो ऐसे ही हुआ कि मैंने कहा कि चलो यार इनसे नहीं तो कुछ ऐसे करते हैं, और मेरे गांव में दोस्त हैं, उनसे जाकर पूछूंगा कि ये यार तुम्हारा औज़ बिल्लाह क्या है, बिस्मिल्लाह क्या है, और ये जो कुरान कहता है अल्लाह की किताब है, ये क्या चीज़ है। तो मैं अपने मोहल्ले के लड़कों से, एक नज़ीर लड़का था मेरे मोहल्ले का ही, उससे हम खेलते भी थे, बातें भी करते थे। मैंने उसे कहा यार ये, उसने कहा औज़ बिल्लाह, जैसे छोटा सा था, फिर बिस्मिल्लाह भी छोटा, कलमा उसने पढ़ा, ये है। मैंने कहा चलो यार
फिर मैंने उसे कहा वुज़ू का यार क्या वुज़ू कैसे करते हो? उसने कहा यार ऐसे ही करते हैं, तब हाथ मुँह धोते हैं ऐसे करते। मैंने कहा चलो एक और लड़का था उससे भी मैंने बात की, उसने मुझे बात भी बता दी कि भाई ऐसे हम करते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये सब कुछ सीखने के बाद एक दफ़ा मैं आया तो मैंने वैसे हिम्मत की, मैंने कहा यार वो उधर भी प्रार्थना भी हम करके आए थे। मैंने कहा यार मुझे गुलाम मोहम्मद तू एक दिन दे दे ज़रा, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब मुझे तरीके सारे आ गए हैं, वुज़ू भी आ गया है, औज़ बिल्लाह भी आ गया है, बिस्मिल्लाह भी आ गया, तो ये कोई बात नहीं, अगर तू कहेगा तो मैं नहा आऊँगा। तो उसने कहा अच्छा यार कल सुबह पढ़ लेना। बस फिर मैंने आगे कोई बात नहीं की। मैंने कहा ज़्यादा मज़ीद करूँगा तो हो सकता है कि ये मुझे इनकार कर दे फिर कि नहीं यार ऐसे है, तुम नहीं जानते। तो मैंने कहा खामोश हो गया। दूसरे दिन जब बड़ी मुश्किल से दिन भी गुजरा, रात भी बड़ी मुश्किल से, इसी इंतज़ार में कि अल्लाह करे रात जल्दी गुजरे, मैं सुबह इसको पढ़ूँ। तो जब सुबह हुई तो वो मैंने देखा कि वो तो सारे स्टूडेंट्स जितने होते थे वो दौड़ के एक दूसरे को बुला, चलो भाई नाश्ता करना, ये करना, वो करना, भाग दौड़ होती। उसमें ये तो नहीं मिल सकता था टाइम कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूँ या मैं ऐसे पढ़ूँ। अगर मैं पढ़ूँ तो हो सकता था वो मुझे कहते भाई तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा यार नहीं। मैंने उसे कहा गुलाम मोहम्मद यार इस वक्त नहीं, इस वक्त बड़ी हम जल्दी में हैं तो स्कूल भी जाना होता है, तो ऐसे करेंगे यार शाम को पढ़ लेंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बड़ा हौसला हुआ। तो डे टाइम पे फिर मेरा दिन नहीं गुजरता था, मैं घूम के या अल्लाह जल्द कर हो तो दिन गुजरे। तो एक दफ़ा तो बल्कि ऐसे हुआ कि वहाँ बैठे थे स्कूल में, क्लास में बैठा था, तो मैं सोच रहा था, मैं अपनी सोच में गुम था कि जल्दी मैं पता नहीं क्या किताब मुझे बताएगी, क्या होगा उस किताब में। टीचर्स कुछ पढ़ा रहे थे तो मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने देखा कि ये तो इसका ध्यान नहीं आया, उन्होंने मुझे कोई सवाल पूछा, मुझे पता ही नहीं था। फिर उन्होंने साथ वाले ने मुझे कहा कि उठो, टीचर कह रहा है कि उठो। मैं स्टैंड अप हो गया तो उसने फिर मुझे कहा कि होश में? मैंने कहा जी होश में। कहा मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं है। तो रूटिंग तो होती है, रूटिंग गई थोड़ी सी, फिर मुझे खड़ा करके ना उन्हें बिठा दिया। फिर मैं उधर यानी मैं उसमें गुम रहता था। जब वो वक्त चला गया, शाम हुई, अल्लाह ने किया, मैंने फिर वो लड़के अपने अपने कमरे में स्टडी में लग गए। उसके बाद लड़के जो चूँकि सर्दियों का रात थी, सर्दियों का वक्त था, तो वो लड़के अपने अपने बिस्तरों में अपना हो गए। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चलना फिरना एक दूसरे को, वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने उसे कहा यार मैं पढ़ लूँ। तो मैंने देखा कि वो भी बिस्तर में ना मुँह लपेट के वो भी सो गया। तो मुझे कहने लगा हाँ यार पढ़ लो। मैंने कहा यार तुम सो रहे हो। कहता तुझे क्या सोने, मुझे सोने तो तुम पढ़ लो। तो मैंने फिर वो किताब उठाई, उसी तरह औज़ बिल्लाह पढ़ के, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले वज़ू कर आया, बल्कि नहा के आया। तो चूँकि बस जब मैंने उसे चूमा आँखों से लगाया तो फिर वो बड़ी फिर वो मेरी आँखों से लगे। तो जो थी ना आँखें बरस गई, बिल्कुल ऐसे हिचकी बन गई ना, वो मुझसे जो है ना जुदा नहीं होती थी आँखों से। तो मेरा जो था ना, मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। बहुत मैंने कोशिश की मगर नहीं, चूँकि वो मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत थी, पहली चाहत थी, और मैं शौक़ से उसको चाह रहा था, और बड़ी मुश्किल से वो मेरे हाथ में आई। तो मैं उसको ना फिर बर्दाश्त नहीं कर सका कि अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये तुम्हारे जो नापाक आंसू है, ये इस पर गिरेंगे तो इसकी बेअदबी हो जाएगी। उसने कहा कि ये अल्लाह की किताब है, डर लगता है, तो ऐसा ना हो कि तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। तो मैंने हिचकी अपने काबू करने की कोशिश की, आंसुओं को साफ़ किया और कोशिश की कि किसी तरीके से मैं अपने आप पर काबू पाऊँ, जज्बात को रोका। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ऊपर काबू किया। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर ज़रा आवाज़ ही निकल गई तो हो सकता है कि ये मुझे कहे कि यार छोड़ो तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ये छीन लेगा तो मेरी सारी ख्वाहिशात का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया, जज्बात पर। फिर मैंने खोला, फिर उसको जहाँ से निकला खोला। अब अरबी तो मुझे आती थी, बहुत खूबसूरत किताब थी, वही लानी लगी ऐसे।
तो मैंने कहा चलो यार अरबी तो नहीं तो इसका तर्जमा पढ़ते हैं। तो वो पहले ही जो तर्जमा पढ़ा ना, तो वो ये लिखा हुआ था कि बेशक मेरे नज़दीक अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार। तो वो मैं उसमें खो गया कि ये किताब क्या कह रही है कि मेरे नज़दीक अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। तो मैंने तो हिंदू माशरे में ये देखा था कि भाई वो बड़े बड़े रामचंद्र जी के महल और उनकी रानियाँ और बड़े बड़े जो पुरोहित होते हैं और बड़े बड़े साधु दरवेश, इनके बड़े बड़े रुतबे होते हैं और इनके तो बड़े एहतराम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सारे के सारे और बुतों वाला साहब। तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसी किताब कैसे क्या कह रही है, ये तो सारे के सारे उसके उल्ट है। वो तो बड़ी सीधी सी बात अल्लाह कह रहा है, कुरान किताब कह रही है कि मेरे नज़दीक अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार। अब जो भी खुदा से डरे परहेजगार, तो बस फिर मेरे जज्बात जो है फिर उसी तरह हो गया। तो उसके बाद मैंने किताब को बंद किया और आराम से रख दिया। अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोचता रहा कि ये किताब क्या कह रही है। बड़ी मुश्किल से ये अल्लाह की किताब है, तो ये अल्लाह क्या कह रहा है, ये मुसलमानों का अल्लाह तो बहुत अच्छा है, इस अल्लाह को तो ज़रूर मिलना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, ये अल्लाह तो बहुत अच्छा है। इसने एक पैमाना दे दिया कि म्यार बना दिया कि मेरे नज़दीक अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार। ये तो इसने सारी पूरी आलम इंसानियत को एक इत्तेनफ़स दी है, ये तो कोई नहीं। अब मैं इसी सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आती। अचानक मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह तो आसमानों पर कहते हैं रहता है, तो ये किताब ज़मीन पर कैसे आ गई। अब मैं उलझ गया। तो इसी उलझन में मैंने कहा यार ये तो ठीक है, मैं सोचता रहा, इसी सोच में मुझे नींद आ गई। और फिर जब मैं सुबह बेदार हुआ तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बात इससे मैं पूछूंगा तो ये कहेगा मैं इसीलिए नहीं देता था, कोई इतराज़ करेगा तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा। मैंने कहा मैं गांव जाऊंगा तो अपने गांव के लड़कों से पूछे। फिर वही नज़ीर जो था, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरा राज जो है आउट हो जाए, कि कोई बता दे कि भाई ऐसे ऐसे बातें करता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लीक आउट होने पर मेरा मुआशरा मुझे या मेरे घर वाले मुझे तंग करें, जबर करें। तो मैंने उसी से यही कहा, मैंने कहा यार ये तुम मुझे बताया था वज़ू भी कलमा भी, ये बताओ कि ये किताब अगर अल्लाह की है तो ज़मीन पर कैसे आ गई। तो उसने कहा यार देखो हमारा एक नबी थे मक्का मुअज़्ज़मा में, उन पर ये किताब उतरी। तो मैंने कहा वो कैसे उतरी। तो कहने लगा यार इसका मुझे नहीं पता, उतरनी थी उतर गई। अब तुम अपने ग्रंथ की बात करो, तुम मेरे साथ क्या बातें करते हो। मैंने कहा यार तुम नाराज़ हो गया, मैं वैसे पूछ रहा था इंफॉर्मेशन से। वो कहने लगा देखो भाई मुझे इतना ही पता है, मेरा एक खालू है वो वहाँ जगह रहता है, कोई किसी जगह का नाम लिया, वो बड़ा अच्छा आलम है और बड़ा अच्छा आदमी है, वो आएगा ना तो मैं आपको मुलाकात कराऊँगा, तो उससे जो सवाल दिल करता है आपका कर लें, तो वो बिल्कुल आपको जवाब देगा। मैंने कहा चलो ठीक। बस वो हफ्ते को जाते थे, इतवार को हम वापस आ जाते, मैं चला गया वापस। फिर मुझे बड़ा शौक, मैं बड़ी दुआएं करूँगी या अल्लाह किसी तरीके से मैं घर जाऊँ, एक दिन के लिए तो मैं जाता हूँ रात को, तो ऐसा हो कि उस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाए। फिर वही हुआ कि हम घर के बाहर एक जगह बनी थी दारा, वहाँ बड़े बड़े दरख्त थे और बड़ा अच्छी, वहाँ लोग आकर रात के टाइम पे जितने ज़मींदार वगैरह भी होते थे, फूल लगे होते थे, हुक्के का इंतज़ाम होता था, वहाँ बैठते थे। तो वहाँ हम खड़े बातें कर रहे थे, तो वही नज़ीर उससे तो देखा और सामने साइकिल से वो आ गया, कहता यार वो देखो वो मेरा खालू आ गया। मैंने कहा यार अच्छा फिर आज ख्याल रखना। अब वो तो चला गया अंदर, मगर मेरा दिल जो था ना बड़ा धड़कने लगा, दग दग करने लगा। मैंने कहा हो ये तो अब मेरा इम्तिहान आ गया, पता नहीं वो मुझे क्या कहे या क्या ना कहे। नतीजे में मैंने देखा कि वो बाहर मेरी तरफ ही इधर ही आना शुरू हो गया। मैंने कहा वो मुझे कहने लगा यार वो आया उससे पूछ लो। मैंने कहा यार तुम बात करो, आपस में बात कर ही रहे थे तो वो आ गया, हमारे पास आ गया। तो फिर ये खुद ही नज़ीर कहता है कि खालू जी ये एक लड़का है सिख, ये बड़े सवाल करता है, कहता है तुम्हारा कुरान कैसे ऊपर से कैसे आ गया, अल्लाह तो ऊपर होता है, तुम्हारा नबी कैसा है, किधर है, तो ये बड़ी अजीब बातें करता है।
تو اس نے کہا وہ بیٹا بڑی اس کی میٹھی زبان تھی, اتنا اس کا اچھا انداز تھا کہ مجھے بڑا حوصلہ ہوا. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, آؤ میرے ساتھ بات کرو, میں جو آپ کہیں گے میں اس کا جواب دوں گا, پوچھو کیا پوچھتے. میں نے کہا نہیں اس جگہ نہیں, ادھر تو سب لوگ آتے جا رہے ہیں, ہندو لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ایسے نہیں, میں آپ کے گھر جاتا ہوں, آپ گھر چلیں. وہ گھر چلا گیا, میں ان کے پیچھے چلا گیا. تو پھر اس نے مجھے بٹھایا بڑے میٹھے پیارے انداز سے کہ بیٹا بیٹھو آپ پوچھو. تو مجھے حوصلہ جب ہوا تو میں نے اسے ساری بات وہ ہاسٹل والی بتا دی کہ ایسے ایسے میرا شوق ہے, ایسے ایسے اس نے باتیں کی. تو آپ میری رہنمائی کرے. اب مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے کہ اللہ تو آسمانوں پر رہتا ہے, تو یہ کتاب کیسے آئی. اس نے کہا ہاں بیٹا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں اللہ پاک نے چاہا اپنی پوری کائنات سے ایک نبی بنانا چاہا, تو پوری کائنات سے افضل ایک نبی بنایا. پہلے اسے بشارتیں دی خواب میں, اس کے بعد اس نے جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سردار ہیں انہیں کہا کہ بھائی جاؤ میرے اس بندے کے پاس, انہیں کہا میں نے آپ کو نبی بنایا ہے اور میں آپ پر کتاب اتارنے والا ہوں, اس میں جو پیغام میں آپ کو دوں گا نا آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو اس نے آ کر ایسے کیا کہ بھئی اللہ پاک نے آپ کو کائنات سے افضل نبی چن لیا ہے اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں. تو اب مجھے فوری طور پہ یہ خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون تھا. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا جی وہ کوئی مکہ معظمہ کا بادشاہ تھا, سردار تھا یا کون تھا. تو اس نے کہا نہیں وہ تو یتیم لڑکا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا, اور وہ تو اس کا کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے. پھر مجھے یہ بڑی عجیب بات لگی کہ واہ اللہ کی کتاب دیکھو کتنی سچی ہے, کیسی سچی سچی باتیں اس نے کی کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز. اور وہی بات ہوئی اللہ کی کتاب کی کہ اللہ نے پھر چنا بھی, بندہ بھی وہ چنا ساری کائنات سے افضل, جو کہ بالکل جس کا کوئی نہیں ہے, وہ ان پڑھ ہے, یتیم ہے اور بکریاں چراتا ہے. اب میرا دل جو تھا اس کو برداشت نہ کرے کہ واہ کیسا محبوب اس نے چنا. میرا دل کرے کہ میں اسے چھوڑ دے, مجھے میں بھاگ جاؤں. مگر مجھے وہ کہنے لگا دیکھو بیٹا پھر بات تو پوری ہونے دو. اس نے یہ ہوا کہ وہ فرشتہ جب کہا تو فرشتہ کتاب بات سے جو کچھ لے کے آتا تھا وہ نبی کو بتاتا تھا, نبی یاد کر لیتے تھے. جو لوگ سوال جواب کرتے تھے وہ بھی اللہ پاک اس کے ذریعے بھیجتے تھے, وہ اس کو جواب دیا جاتا. وہ اسی طرح سوال جو ہم نے قرآن بن گیا اور انہوں نے کیا یاد بھی کر لیا, کچھ کھجور کے پتوں میں لکھ لیا, چمڑے پر لکھ لیا. تو یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود. تو یہ ایسے زمین پر آیا. میں نے کہا اچھا. تو جب اس نے ساری بات بتا دی تو اتنی دیر میں ایک عورت ان کے گھر کوئی چیز لینے آئی تو مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں. میرے جذبات تو بہت ابھر چکے تھے. میں جلدی جلدی گیا, وہی جو مندر کہہ رہا ہوں میں, مندر بھی قریب تھا, اسکول بھی ساتھ ہی تھا. میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے گاؤں سے میں ادھر چلا گیا اور پھر میں جا کر اس کی دیوار پکڑ کر بڑا رویا. بس وہ ایک میرا کہ اللہ میرے لیے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. اور کتاب کا یہ پھر یہ اللہ کتنا خوبصورت ہے. پھر اس سے نبی کیسا چنا, یہ ان کا میں دل میں ذکر کرتا ہوں اور تھوڑی دیر روتا رہا. پھر وہ آئے تو میں نے کہا نہیں آپ جائیں, آپ کوئی دیکھ لے گا نا تو میری شامت آ جائے گی. بس ہو گیا, میرا وقت ہو گیا واپس جانے کا, تو میں واپس اب چلا جاؤں. اب میں نامی سے پاس کر کے 10ویں میں چلا گیا. 10ویں کے بعد چھٹیاں آئیں, چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا. تو گھر میں میری ایک الگ بیٹھک تھی, تو وہاں میں پڑھ رہا تھا شام کے ٹائم. میں نے کہا چلو کچھ یاد کر لو, اسکول کا کام کر لو. تو میں نے اس وقت یہ مٹی کے دیے جلا کرتے تھے, اس میں
रुई वगैरह डालते थे बत्ती, तो उससे तेल ये सरसों का होता था, तो वो मैं रख कर टेबल पर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल यही आ गया अल्लाह रसूल और किताब का, मैं उसमें गुम हो गया। तो वो मैं मेरा ऐसे ज़रा हुआ ना, तो मेरा जूआ तो खुल गया, ऊपर से बाल खुल गए, वो बत्ती पर पड़े और बत्ती ने जल गए सारे। जब वो अचानक जले तो मेरी चीख निकल गई। उधर से मेरी वालदा साहबा दौड़ कर आई और कहा बेटे क्या हो गया, बाल जल चुके थे। मैंने कहा अम्मी फौरी तौर पर, मैंने कहा मुझे ऐसे पता चला जैसे किसी ने मेरी गर्दन आगे कर दी और मेरे बाल जल गए। तो उसने कहा बेटा छोड़ दो तुम मेरे कमरे में, और मैं वहाँ चला गया। तो जब सुबह हुई तो उसने मेरे बाल को बताया कि ये बात हो गई है, इसको साया हो गया। इसमें दौरान एक बार ये हो गई कि जब एक दिन मुझे माँ ने कहा कि तू गुमसुम क्यों रहता है, क्यों इतना रहता है बेटे, मुझे सच्ची सच्ची बात बता। तो मुझे हौसला हुआ ना थोड़ा सा, तो मैंने माँ को सच्ची बात बता दी कि माँ मेरा दिल करता है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो उसने कहा ये बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या सोचा, इसलिए मुसलमान लड़कों के साथ खेलते हो, ये तो हमारी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, हमारी बड़ी इज्जत है, इधर रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरे क्या, खबरदार तुमने ऐसी बात की। मैंने कहा नहीं माँ कोई बात नहीं, मुझसे भूल हो गई है, वैसे मैंने कह दिया। मगर उसने मेरी वालद को ये बात बता दी। वालद ने बड़ा पीटा मुझे, बड़ा सख्त तबीयत का था। तो उसके बाद ये वाक़या हुआ जो मेरे बाल जले, तो फिर उसने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। इसलिए उसने कहा कि इसको वाकई साया है, ये मजबूर है। तो फिर उसने कहा पहले मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि मुसलमान लड़कों के साथ नहीं खेलना, तो नहीं खेलने, तो मैं अकेला रह गया। तो अब मैंने क्या सोचा, मेरे महल्ले का एक लड़का था अब्दुल मीर कश्मीरी, वो लोगों के ये बाग खरीद लेता था, फिर बेचता रहता था फ्रूट वगैरह। तो मैं उसके पास चला जाता था बाग में, उससे गप्पे शप्पे लगाता था, महल्ले का भी था। तो ना तो वो बहुत अच्छी पढ़ता था, उसका रुझान भी कुछ मजहबी था। तो मैंने उससे पर्दे में बात की आस्ते आस्ते। उसने कहा यार ये बात तो ठीक है, मगर ये देखना मुझे ना मरवा देना ना, तुम भी बताओ कि इस वक्त अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो क्या करोगे, मर जाओगे, भूखे मर जाओ, किधर जाओगे, तुम तो भी बच्चे हो। अच्छा तो ये होता कि मैट्रिक कर लेते, उसके बाद किसी नौकरी पे चले जाते, फिर जो मर्जी करते, कम अज़ कम डिपेंडेंट तो किसी के ना होते। मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो वो कहने लगा अभी नहीं। उसके बाद चलता रहा काम। तो वो कहने लगा कि वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार सारे घर वाले जो थे ना, वो किसी रिश्ते में गए हुए थे, किसी के घर रिश्तेदारों में। तो मुझे मौका मिल गया, मैं गया उसके पास। मैंने कहा यार ये बात हो गई है तुम। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मीनवाइल उसने पता करा रखा था उसका, वहाँ सियालकोट में ना रंगपुरे में उसके रिश्तेदार थे, उनसे बात की थी। उसने कहा ले आना। वो जुम्मे का दिन था, मुझे ले गए वहाँ मोहम्मद अली कांदलवी साहब बहुत बड़े थे, देवबंद वाले हदीस के थे, देवबंदी थे, तो बड़े आलम थे। उनके पास ले गए। उन्होंने कहा जाओ भाई इसको बेटे नहाओ और आ जाओ। नहाने के बाद मैं गया, उन्होंने मुझे कलमे पढ़ा दिए बड़े प्यारे अंदाज में। मेरा नाम फिर अब्दुल अजीज रख दिया, प्यारे सिंह से यानी अब्दुल अजीज रख दिया। तो मैं मुसलमान हूँ। अब मुझे वो तसल्ली होगी, वो जो बेचैनी थी ना वो मेरी ठीक होगी। मैंने कहा वो कश्मकश जाती थी। मैंने कहा ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे हासिल हो गया। आज वो मकान जिसमें अब्दुल अजीज रहते थे दूसरों के कब्जे में है, उनकी जमीन भी उनके पास नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम उम्र पाकिस्तान रेलवे में नौकरी करते गुजार दी। अब वो रिटायर हो चुके हैं। चौधरी अब्दुल अजीज अब भी जोड़ियां कलां जाते हैं। गांव के लोग उनके बारे में निहायत एहतराम और अकीदत के जज्बात रखते हैं। ये रिटायर होकर हमारे गांव में आए तो ज़हनी तौर पर ये मेरे करीब आए और मैंने उनको देखा कि इनमें कोई थोड़ी बेकरारी और इल्मी लगाव था इनमें।
उस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा पीछा किया इनका। तो इनकी शख्सियत का मुझ पर ज़ाती तौर पर ये असर हुआ। फ़ख्र वाली तो कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं मिले मैं मस्जिद में बहुत कम जाता था। इन्होंने मुझे मस्जिद में जाना सिखाया। इनके अल्फाज, इनकी तरबियत लाशऊरी तौर पर ये मुझको इन्होंने मुतासर किया। फिर ये आगे और मैं पीछे पीछे चलता रहा। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मुझे नमाजी बनाया। वो इनके बाद जो खानदान था वो इंडिया में चले गए, क्योंकि उन्होंने 8 दफ़ा कहा कि मैं तो कबूल का लिए मैं भी जाना नहीं है, तुम मेरे मामले दूर हो लेकिन मैं इंडिया जाना नहीं है, मैं पक्का भ्रमण हो चुका हूँ। तो वो चले गए। उसके बाद ये जो जिन्हों के साथ इन्होंने 24 जिन्होंने सहारा लिया, उन्होंने उनके साथ को अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा बसलूक किया इनके साथ। इसकी ज़मीन भी छिन गई, मकान भी छिन गया इनका, लेकिन ये फिर बहुत छोड़ चले गए। वो पाकिस्तान की जो तारीख थी बड़ी उस वक्त मतलब गड़बड़ हो रही थी, कत्ल-ओ-गारत हो रही थी, तो इसको वो उग्गो की कैंप में ले गए। ये वहाँ से ही भाग के फिर वापस आ गया और हम लोगों के पास फिर इसको हमने जनाब बड़ी प्रोटेक्शन दी। और रात को मैं खुद मेरी चारपाई के पास इसकी चारपाई मतलब बिछाने की रात को इसकी हिफाजत कर। महाजर जो आए थे उनके बहुत राइट्स थे, वो जहाँ भी चाहे जिसको जहाँ कब्जा करे, तो वो मकान उन्होंने इससे छीन लिया। ज़मीन इसके बाप दादा की थी, वो भी उन्होंने लाट करा ली जी, इसके बाप को वहाँ मिल गई है, इसको नहीं मिलनी चाहिए। और इसके साथ ज़्यादती हुई बहुत ज़बरदस्त। हालांकि जो इस्लाम कबूल करता है उसकी हर मदद करते हैं, इसकी अपनी ज़ाती चीज़ भी इसको नहीं मिली, लेकिन हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। प्यारा सिंह अब्दुल अजीज बन गए। उनकी जिंदगी का सफर बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी है, जिससे गांव के लोग और दोस्त इस्तिफादा करते रहते हैं। और आज वो प्यार का ऐसा दरिया है जिससे अपने पराए सब सैराब हो रहे हैं। तो बात यह है कि हासिल ज़िंदगी जो है अल्लामा साहब के नज़दीक ये है कि मुस्तफ़ा राजी ना शुद्ध दिल्ला बजात। हम चूँकि उनको मानने वाले हैं तो हमारा मकसद याद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह पाक का दीदार करना है और दीदार के काबिल अपने आप को बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे जो पहली चीज़ अल्लामा मरहूमी कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको इताअत करनी है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ने वो उनको मिराज सबक मिला है मिराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आज मैं बशरियत की ज़द में है कर दूँ। अगर हमने उनकी इताअत करनी है तो उनकी इताअत का मतलब ये है कि हम अल्लाह पाक को देखें और यही हमारी खुशी होनी चाहिए। तो और रज़ा के लिए दिन रात हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप फरमाते हैं कि ज़िंदगी राह रवां दर तगो ता दस्तो बस काफिला मौजरा ज़्यादा मंजिल कुजास्त। आपके लिए ये नहीं कि निर्वाण हो गया, ज्ञान हो गया, मार्फत मिल गई तो बस नहीं, आखिरी दम तक मुसलसल सफ़र, मुसलसल जदोजहद। तो ये मुसलसल स्ट्रगल जो है ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम थोड़ी देर चलते हैं तो थक जाते हैं।